So this morning, Lijo will be helping to translate from friend in Hindi. Put your hands together for this young man. Hey, come on, man. Sometimes you need to appreciate the hard work these children are doing. Turn with me to the beautiful book of Acts. हम प्रेरितों के पुस्तक की तरफ अपने ध्यान को हटाएंगे. And chapter number 19. 19वां अध्याय. I will be bringing some beautiful story from this chapter, but this would be the verse that I would be standing on, verse number 11. God did extraordinary miracles through Paul. परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता है, ये 11वां वाक्य कहता है. What a beautiful thing. God did extraordinary miracles through Paul. ये कितनी बेहतरीन चीज है कि परमेश्वर जो है पौलुस के द्वारा अनोखे काम को दिखाता है. Miracle itself is beautiful, isn't it? अचंभ कार्य यही बहुत ही एक शानदार चीज है. How many of you like miracles? हम में से कितने लोग पसंद करते हैं आश्चर्य चीजों I को? love miracle. मैं जो है आश्चर्य कामों से जो है बहुत उत्सुक रहता हूं. What miracle is when it is not going to happen, something happening is a miracle. अचंभा कार्य तब होता है जब कुछ चीज होने वाली नहीं होती है लेकिन अचानक से वो हो जाती है, तब वो एक अचंभा कार्य होता The है. blind, their eyes opening is a miracle. जब अंधे देखने लगते हैं वो एक अचंभा कार्य है. A lame person standing up and walking is a miracle. एक लंगड़ा एक जो है पैर में जो है कमजोर व्यक्ति जो है उठकर चलने लगता है, वो एक अचंभा कार्य है. In the Holy Bible, we see many miracles. परमेश्वर के वचन में हम कई ऐसे अचंभा कार्यों को देखते हैं. In the Old Testament, there are so many miracles. पुराने नियम में कई अचंभा कार्यों को देखते हैं. Some of the miracles are done by the prophets of those times. कुछ अचंभा कार्य जो है उस समय के भविष्यवक्ताओं के द्वारा किया गया है. Sometimes in the Old Testament, we see dead people coming to life as well. पुराने नियम में हम कई जो है मुर्दों को जो है जागकर जिंदा होते हुए हम देखते हैं. In the New Testament, you see Jesus performing a lot of miracles. नए नियम में यीशु मसीह खुद जो है कई अचंभा कार्यों को करते हुए हम देखते हैं. And then Jesus said, if you believe in me, you will do greater things than I did. और यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तुम मेरे से भी अधिक अचंभा कार्यों को करोगे. So Paul is doing something what Jesus also did not do. पौलुस ऐसा कुछ चीज कर रहा है जो यीशु मसीह ने खुद नहीं किया. Only in one instance, one lady came who was having bleeding and touched the cloak of Jesus, and immediately the power from Jesus went into this lady and her bleeding stopped. जो है लहू बहने वाली पीड़ा से जो है व्याकुल एक स्त्री जब यीशु मसीह के करीब आकर जो है उनके कपड़े को छूती है, उनके अंदर से वो सामर्थ उनमें जो है होकर वो अचंभा कार्य होता है. But you see verse number 12 here, so that Paul's handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illness were cured, and the evil spirit had left him. 12वां वाक्य कहता है यहाँ तक कि रूमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कर कर बीमार पर डालते और उनकी बीमारियां जाती रहती थी. Think about this extraordinary power of miracle happening. और ये अचंभा जो शक्ति जो है अचंभा कार्य होने का, इसके बारे में ध्यान दीजिए. Now it is not my touch that is healing. अब जो है मेरे हाथ के छूने से वहां पर चंगाई नहीं होती. This coat that I am wearing, I remove it and give it to somebody where Lijo cannot come. This coat is being put on him and that person gets healed. अब मुझे हाथ छूने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं अगर मैं ये कोट जो है किसी के हाथ में पहुंचाता हूँ, वो व्यक्ति जो है वहां पर चंगाई को प्राप्त करता The है. kerchief, the handkerchief that the sweat is being wiped off Paul is being taken and people are getting healed. जो रूमाल से पौलुस अपने पसीने को पोंछता है, अगर वो रूमाल किसी के हाथ में पहुंचता है वहां पर चंगाई होती है. This is extraordinary miracle. ये बहुत ही एक अचंभा कार्य है. And we need to see those extraordinary miracles in our lifetime also. और ऐसी अचंभा कार्य को जो है हमारी जिंदगी में देखना बहुत जरूरी है. Because I know my Jesus is the same yesterday, today and forever. मैं जानता हूं कि मेरा यीशु मसीह पहले भी जैसा था और आज भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहने वाला है. So the power manifestation only increased and not decreased. और जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वो हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, वो कभी घटता नहीं. So now I with that in mind, I want you to start learning chapter number 19. और इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए जो है 19वें अध्याय को हम सीखेंगे. While Apollos was at Corinth, verse number 1, Paul took the road through the interior
and arrived at a place called Ephesus. There he found some disciples. जब अपुल्लोस कुरिन्थियस में था और पौलुस ऊपर से सारे प्रदेश को होकर इफिसुस में आया, वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा। What do you mean by disciple? यहाँ पर चेलों को क्या अर्थ क्या होता है? Disciples are the people who follow a leader. चेलों का मतलब ये होता है कि एक नेता को जो है पीछा करने वाले कुछ लोग। Now these disciples are really standing up for some truth. अब ये चेले जो है यहाँ पर कुछ सच्चाई के लिए खड़े हो रहे हैं। And now Paul is coming and asking them one very important question. और पौलुस उनके पास आकर जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछता है। Did you receive the Holy Spirit when you believed? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? There is a difference. Now you need to understand the word of God very clearly. यहाँ पर परमेश्वर के वचन को एकदम ध्यान से सीखना बहुत जरूरी है। How do you believe God? तुम परमेश्वर पे कैसा विश्वास करते हो? How do you come to Jesus? आप यीशु मसीह के पास कैसे आते हो? You do come through the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के पास आते हो। Without the Holy Spirit convicting you and making you aware that you are a sinner, you would not acknowledge you are a sinner. पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर एक मन फिराव लाके आपको अपने आप को एक पापी समझाकर आप विश्वास नहीं कर सकते। Now once the Holy Spirit ministers only, you can believe. और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करती है तब जाकर आप विश्वास कर सकते हो। Without Holy Spirit, nobody can believe. पवित्र आत्मा के बिना कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। And that is a very important truth of the word of God. और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। But here you see the difference. यहाँ पे उसकी अलगता को हम देखते हैं। When they asked, did you receive the Holy Spirit when you believed? यहाँ पे पौलुस पूछता है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? Did you receive a Holy Spirit when you believed in Jesus Christ? जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया? When you wanted to become a child of Jesus, did you receive the Holy Spirit? जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के जो है संतान बनना चाहते थे, तब क्या आपने पवित्र आत्मा को This is पाया? a very interesting question that ये- Paul is asking. ये बहुत ही एक अजीब सा एक जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है। And in their all innocency, they said, no, we have not even heard about that word called Holy Spirit. और इन्होंने पूरी ईमानदारी से कहा कि हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में कभी सुना ही नहीं। So how did they believe? तो उन्होंने विश्वास कैसे किया? Even without hearing about the Holy Spirit, the Holy Spirit was working in them. वो पवित्र आत्मा के बारे में सुनने बगैर ही वो जो है पवित्र आत्मा उनके अंदर काम कर रही The थी। Holy Spirit was working, Po- but they never heard about that word called Holy Spirit. पवित्र आत्मा उनके अंदर काम कर रही थी, लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में कभी सुना नहीं था। So God wanted them to understand and then receive something. इसलिए परमेश्वर चाहते थे कि वो पवित्र आत्मा के बारे में जाने और कुछ पाए। We receive many things even without our knowledge. हम जो है कई चीजों को पाते हैं अपने ज्ञान के बगैर, But you cannot live in that ignorance forever. लेकिन आप जो है उस अनजाने रीति में जो है अधिक समय तक रह नहीं सकते, Because then you will not value that. क्योंकि आप उसको फिर जो है मूल्य नहीं दोगे। Because you do not know it, you will not value it. क्योंकि आप उस बात को जानते नहीं, तो इसलिए आप उसको मूल्य भी नहीं So दोगे। now Paul is saying, no, I want to do something. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। Then he asked, what baptism did you get baptized into? उसके बाद पौलुस पूछता है, किस प्रकार की बपतिस्मा तुमने ली? This is a good conversation. यहाँ पर एक अच्छा सा एक वहां पर वाद हो रहा है। So from the language of Holy Spirit, he is coming into baptism. अब पवित्र आत्मा से लेकर वो बपतिस्मा की तरफ जा रहे हैं, Because how baptism should be given. क्योंकि बपतिस्मा किस प्रकार लेनी चाहिए? The baptism should be given in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. क्योंकि बपतिस्मा जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे लिया जाना चाहिए। So when you got baptism, did you not hear the word Holy Spirit? तो जब तुमने जो है बपतिस्मा लिया, क्या आपने पवित्र आत्मा के बारे में कभी सुना नहीं? Then they said, no, we got baptized according to the baptism of John. और फिर वो कहते हैं कि हम तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिए थे। So what is the difference of this baptism and that baptism? तो फिर इस बपतिस्मा और उस बपतिस्मा के क्या फर्क है? Are you interested to study about that? क्या आप इस बारे में जो है सीखने के लिए तैयार हैं? Every baptism is not the same baptism. सारी बपतिस्मा जो है एक जैसे नहीं होती। One baptism in the olden days, there was a baptism called proselyte baptism. पुराने जमाने में जो है प्रोसेलाइट जो है बैप्टिज्म नाम का एक बपतिस्मा होता था। That baptism was
to convert from one religion to another religion. उस बपतिस्मा का अर्थ ये है कि एक धर्म से जो है बदलकर दूसरे धर्म में होना, Because those days, Jews were in higher position. क्योंकि उस समय में यहूदी जो है ऊंचे स्तर पर रहा करते थे। This happened during a king called Constantinople. कॉन्स्टेंटिनोपोल नाम, Constantine, the leader of Constantinople, कॉन्स्टेंटिन जो नाम के एक राजा के समय में ये बात हुई, the present day Turkey. और आज के समय की टर्की है। Those days there was a mass conversions happening. उस समय में जो है बहुत सारी बड़ी सी झुंड जो है धर्म को बदलने का संवाद होता था। This non-Christian king became a Christian. और ये जो है मसीह नहीं होने वाला एक राजा जो है एक मसीह बन गया, So there was a mass conversion, mass baptism. और वहां पे जो है बड़ी सी एक झुंड जो है मसीह बन गई, उन्होंने जो है अपना धर्म बदल दिया और बपतिस्मा हुआ। But little before Constantine's time, लेकिन ये कॉन्स्टेंटिन के कुछ समय पहले Jews were highly rated. यहूदी लोग जो है बहुत ही ऊंचे स्तर पर माने जाते थे, They were given high position. उनको जो है अच्छा सा जो है पोजीशन दिया जाता So था। if you want to become a Jew, you need to do certain things. अगर आप एक साधारण व्यक्ति, अगर आप यहूदी बनना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों को करना चाहिए, One of the main things that they need to do is principle called circumcision. और उसमें से एक चीज जो करना चाहिए उसको सर्कमसिशन बोलते हैं, That is cutting off your foreskin. और जो है अपने शरीर के एक भाग को जो है थोड़ा काटना। It is not a funny principle. ये बहुत ही जो है आसान चीज नहीं है, When they are children, they do it, and the children recover very fast. और जब बच्चों में वो किया जाता है वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। But when you become an adult, when the circumcision is done, it is not very pleasant. लेकिन जब वो बड़े होने के बाद कोई व्यक्ति को वो करते हैं वो उतना आसान नहीं होता। So they came up, the Jewish group came up with a principle और उस समय के यहूदी लोग जो है इस सीख को ले आए, called baptism. बपतिस्मा नाम के एक चीज को ले आए, This word baptism was a proselyte baptism. और ये बपतिस्मा जो है प्रोसेलाइट बपतिस्म किया जाता था। When somebody enters into the water, जब कोई पानी में जो है उतरता है, they convert from the Hellenistic background to become a Jew. वो जो है हेलेनिस्टिक बैकग्राउंड से जो है एक यहूदी बन जाते हैं। So many people converted. बहुत सारे लोग उस समय में जो है अपने आप को बदल दिए। They did not convert for good reasons, they converted just for positions. उनके जीवन में वो बदलाव अच्छाई के लिए नहीं हुआ, लेकिन वो जो है अच्छे स्तर को पाने के लिए उन्होंने वो बदलाव लिया। Their man did not change, their religion just changed. वहां पे वो व्यक्ति जो है बदल नहीं रहा था, लेकिन जो है उनका धर्म बदल गया, So that was proselyte baptism. और उसको ही प्रोसेलाइट बैप्टिज्म कहते हैं। And there were so many Jews like that. और उस समय में ऐसे कई यहूदी लोग थे। Now John the Baptist comes अब यूहन्ना बपतिस्मा वहां पर आता है, and he says, no, that's not right. और वो कहता है कि ये सही नहीं, You need to repent from your sin. आपको जो है अपने जीवन में एक मन फिराव होना जरूरी You है। are all like a brood of vipers. आप जो है बहुत ही एक बुरे समान लोग हो, You need to change your character. आपको जो है अपने कैरेक्टर को बदलना है। And the word repentance came. और वहां पर जो है मन फिराव का जो है एक कंसेप्ट आया, Repent from your sin अपने पाप से अपने मन को फिराओ and get baptized. और बपतिस्मा लो। And many people came and stood and got baptized. और वहां पे कई सारे लोग आकर इस बात को कर जो है उन्होंने बपतिस्मा को ली, That is how John's name became John the Baptist. और उसी प्रकार यूहन्ना का नाम यूहन्ना बपतिस्मा हुआ, Because the purpose that God put him here was for baptizing people. क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यूहन्ना के जीवन में इसीलिए था कि वो यहाँ पर आके लोगों को बपतिस्मा दे। God wanted that baptism to happen during that time. परमेश्वर चाहते थे कि उस समय में इस प्रकार का एक बपतिस्मा हो, But from that baptism, there is again an upward move. लेकिन उस बपतिस्मा से भी जो है एक कदम आगे जाती है So समय। from proselyte baptism, अब प्रोसेलाइट बैप्टिज्म से there came the repentance baptism. यहाँ पे मन फिराव का बपतिस्मा आया, And now comes the Jesus style of baptism. और अब यीशु मसीह के तरीके से करने वाला एक बपतिस्मा आता है। Jesus' baptism यीशु मसीह का बपतिस्मा is conversion baptism, उनका जो है एक बदलाव का बपतिस्मा है, is repentance baptism, वहां पे एक मन फिराव का भी बपतिस्मा but है, it is much more greater than those two as well. और वो दोनों चीज से भी एक ऊंचे स्तर पर है। It was a baptism of becoming a disciple. और वो बपतिस्मा जो है एक चेला बनने का बपतिस्मा भी था। You
from your repenting stage, आप जो है अपने मन फिराव के जो है समय से you are becoming a disciple of Jesus. अब आप जो है यीशु मसीह के एक चेले बन रहे हैं And that baptism had to be done according to what Jesus और told. वो बपतिस्मा यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा उसी प्रकार लेना चाहिए था। The olden days, they used to do the repentance baptism. पुराने जमाने में जो है वो लोग जो है मन फिराव की बपतिस्मा को करते थे And this is the place where Paul comes and says, which baptism did you get? और यहाँ पर पौलुस आके लोगों को पूछता है कि तुमने किस प्रकार का बपतिस्मा लिया है। They said they got baptized in the way that John baptized. और उन्होंने कहा कि हमने तो यूहन्ना बपतिस्मा जिस प्रकार बपतिस्मा दे रहा था उसी प्रकार हमने लिया There है। is no harm in that baptism उस बपतिस्मा में कोई गलती तो नहीं because Jesus also got that baptism. क्योंकि यीशु मसीह ने खुद उस प्रकार का बपतिस्मा लिया था। Was there anything for Jesus to repent? क्या वहां पर यीशु मसीह को जो है अपने मन फिराव के लिए कुछ चीज थी? Because John's baptism was the baptism of repentance. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा का बपतिस्मा वहां पे एक मन फिराव का बपतिस्मा था। Why did Jesus take that baptism? और यीशु मसीह ने उस बपतिस्मा को क्यों लिया? Was he doing a repentance there? क्या वो अपने मन को वहां पे फिरा रहे थे? No, he was not. वो नहीं कर रहे थे। He was doing it in his own language. Let everything that is written, let it happen. और वो इसीलिए कर रहे थे कि जो भी लिखा हुआ है वो उसी प्रकार होने पाए। That was the start of the ministry of Jesus. और वही यीशु मसीह की जो है सेवकाई का शुरुआत भी था। That was a platform from where Jesus was introduced to the crowd. और वही एक प्लेटफॉर्म था जहां से यीशु मसीह जो है लोगों की तरफ जो है पहुंचाए गए थे। John says, behold, this is the Lamb of God और यूहन्ना कहता है कि ये जो है परमेश्वर का मेमना who है takes away the sin of the world. जो इस दुनिया के सारे पाप को जो है अपने ऊपर उठा लेता So है। he was the Lamb taking the sin of the world. और वो एक मेमना था जो दुनिया की पाप को ले रहा था। He became a sin for each one of us. वो जो है एक पाप बन गए हम और आपके लिए। So the principle of baptism that Jesus inaugurated और वहां पे जो चीज यीशु मसीह ने शुरुआत की was at the end time of Jesus. वो जो है यीशु मसीह के अंतिम समय में था। When he was going from here, जब वो इस दुनिया से जा रहे थे he said, go eat to the ends of the world, making disciples. उन्होंने कहा कि दुनिया के अंत में जाओ और जो है लोगों को चेला बनाते रहो। This is the principle of the baptism of Jesus. और यही जो है सीख है यीशु मसीह के बपतिस्मा की। You are not getting baptized to become a Christian. तुम सिर्फ एक मसीह बनने के लिए बपतिस्मा नहीं ले रहे हो, You are getting baptized to become the disciple of Jesus. तुम बपतिस्मा इसलिए ले रहे हो ताकि तुम जो है यीशु मसीह के चेले बनो। And the disciples of Jesus were called Christians. और जो भी यीशु मसीह के चेले थे उनको मसीह बुलाया गया। That is the reason when we get baptized, we call ourselves as और Christians. इसीलिए जब हम बपतिस्मा को लेते हैं हम अपने आप को जो है मसीह बुलाते हैं। It was a nickname given to the followers of Jesus. जो भी यीशु मसीह का पीछा करते थे उनको दिया गया हुआ ये नाम था। But the main thing when we get baptized, we become the disciple of और Jesus. सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम उनका पीछा करते हैं हम जो है परमेश्वर के चेले बनते हैं। These fellows already had got baptized, ये लोग जो है ऑलरेडी जो है बपतिस्मा लिए हुए थे, but they're willing to take another baptism लेकिन वहां पे वो इस बात के लिए भी तैयार है कि वो एक और बपतिस्मा को ले, because they knew this is the right baptism. क्योंकि वो समझ में आया उनको कि ये सही रीति का जो है बपतिस्मा था। I have heard people saying, Pastor, I got one baptism already. मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि मैंने ऑलरेडी एक बपतिस्मा ले ली है, Why do I need to take another baptism? अब मैं मुझे वापस लेने की क्या जरूरत है? Because in the Nicene Creed, they say there is only one God and only one baptism. और लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही भगवान है और एक ही बपतिस्मा है। But here you understand, when they understood the truth, they were ready to get baptized again. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जब ये लोगों ने ये सच्चाई को बात को समझी, उन्होंने जो है वापस बपतिस्मा लेने के लिए वो लोग तैयार हो गए। Many of us probably would have got baptized when you are very small. हम में से कई लोगों ने जो है जब बहुत छोटे थे तभी हमने बपतिस्मा लिया I होगा। don't say anything about it. I don't say wrong. मैं नहीं कहता कि वो गलत हो या फिर आपके खिलाफ मैं कुछ नहीं कहता, Because you did not know it. क्योंकि आप जानते नहीं थे। I can't ever blame you. मैं आपको दोषी नहीं ठहरा सकता Because you did not know it. क्योंकि आप नहीं जानते थे। And when that baptism probably happened, और जब वो बपतिस्मा हुआ, when the priest took you in his hand जब वहां का जो है महायाजक जो है आपको हाथों में ले रहा था, and put you in the water, वो आपको पानी में डाल रहा था, my goodness, you cried your heart out. मैं सोचता हूँ कि आपने जो है बहुत रो लिया हुआ। Right? You cried, my God, take me out of the water. आप बोल रहे होंगे कि मुझे इस पानी से बाहर निकालो। Early morning I had a bath. Why is the priest giving me another bath? मैं सवेरे एक बार ऑलरेडी नहा चुका हूँ लेकिन मैं वापस क्यों इस पानी में हूँ? So after that principle,
You did not enjoy that baptism, did you? और वो बपतिस्मा के बाद जो है आपको कुछ खुशी नहीं मिली। But the baptism that you enjoy is a baptism that you do when you know the truth. और ये बपतिस्मा खुशी की बात है जब आप उस बपतिस्मा को जो है अपने जानने के बाद लेते हो। So always understand, knowing the truth is very important before you do anything. इस बात को समझिएगा कि आप जब सच्चाई को जानकर कुछ चीज को करते हैं बहुत ही अच्छा होता है। Now we come on this word, verse number 5. अब हम 5वें वाक्य में आते हैं। On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम पे बपतिस्मा लिया। See the word? They were baptized in the name of Lord Jesus. यहाँ पर देखिएगा कि वो लोग ने जो है यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा So लिया। people ask me, Pastor, the baptism should happen in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. अब आप मुझसे पूछेंगे कि पासवान जी जो है बपतिस्मा जो है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होना But चाहिए, here the baptism is happening in the name of Jesus. लेकिन यहाँ पर ये बपतिस्मा यीशु के नाम पे हो रहा है। If you ask me, it is okay, but there are churches around this world who baptize people only in the name of Jesus. अगर आप मुझसे पूछे तो ये बात ठीक है, लेकिन आज इस दुनिया में कई ऐसी कलीसिया है जो सिर्फ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं, And that church is called only Jesus Church. और वो लोग सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले जो है सभा जाने जाते हैं, Because of the verse, they baptize them in the name of Jesus Christ. क्योंकि ये वचन से वो लोग अपने आप को स्थिर करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में जो है बपतिस्मा लेना चाहिए। I tell them this is the principle you need to understand. मैं उनसे कहता हूँ कि ये एक सीख है जो आपको समझनी चाहिए। When you say meals, जब आप भोजन के बारे में कहते हो मील्स, we have some hotel people here. हमारे पास कई होटल में काम करने वाले लोग हैं। We, I don't know, you would have seen in Punjabi say meals ready. आप पंजाब में देखे होंगे कि मील्स रेडी करके जो बोर्ड लगाया In जाता है। Sri Lanka also they have a big board, right? Meals ready. श्रीलंका में भी आपने देखा होगा कि मील्स रेडी नाम का जो एक बोर्ड लगा रहता है। What is there in the meal? और उस मील में क्या होता है? What is there in the meal? मील Rice is there, curry is there, all the other things are there, papad is there, even achar is there. ये सारी चीज जो है वो मील के अंदर आती है, And all becomes together one thing called meal. और ये सब चीज को एक नाम दिया जाता है, वो है मील। And that board will be sometimes small in order to write everything. और ये सब नाम को जो है वहां पर लिखने के लिए वो बोर्ड छोटा हो जाता है। Rice is there, chapati is there, papadam is there, achar is there. They don't write that. ये बड़ी गिनती को लिखने के लिए जो है वो बोर्ड इतना बड़ा नहीं होता, They write one word called meals. वो सिर्फ लिखते हैं कि मील्स वहां पर तैयार है। John's baptism was the baptism of repentance. यूहन्ना का बपतिस्मा का जो बपतिस्मा था वो सिर्फ मन फिराव का बपतिस्मा था, Jesus' baptism was in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. और यीशु मसीह का बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम वाला They बपतिस्मा था। did not need to write every now and then in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit. They baptized, but a single word they wrote, they baptized in the name of Jesus. उनको हमेशा इस बात को लिखने की जरूरत नहीं थी कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ली जाती है, लेकिन सिर्फ एक यीशु मसीह का बपतिस्मा कहा जाता था। Otherwise, when they were baptized in the name of Jesus Christ, the Holy Spirit would not have come upon them. क्योंकि अगर वो यीशु मसीह के नाम में ही सिर्फ बपतिस्मा लेते थे तो वहां पर पवित्र आत्मा हो सकता है वहां पर नहीं आती। On hearing this, they were baptized in the name of the Holy Spirit. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them. जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे। Everybody say the Holy Spirit came on them. और पवित्र आत्मा उनके ऊपर ऊँटे ली। So if at all it is coming from somewhere. अगर वो पवित्र आत्मा आ रही है तो वो कहीं से तो आ रही है, It comes from heaven. वो स्वर्ग से आते हैं। So it is not from the hand of Paul. वो जो है पौलुस के हाथ से नहीं आता। Paul kept his hand, पौलुस ने सिर्फ अपने हाथ को उन पर रखा, but the Holy Spirit came from heaven लेकिन पवित्र आत्मा जो है स्वर्ग से उनके बीच में आई and it came upon their bodies. और वो जो है उनके शरीर पे आ बैठी। Two things happened there. वहां पर दो चीज होते हैं, They spoke in tongues. वे भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे। When the Holy Spirit came upon them, जब पवित्र आत्मा उन पर आ बैठे they spoke in tongues. वो जो है भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे। Speaking in tongues is an outward appearance of the presence of the Holy Spirit. भिन्न भिन्न में भाषाओं में बात करने वाली बात तब आती है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है और बाहर लोग को वो देखने में मिलता It है। is not just one church's
principle, वो सिर्फ एक कलीसिया का सीख नहीं, it is the biblical principle. वो जो है परमेश्वर के वचन का सीख है। When you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को पाते हो, some of you can speak in unknown tongues. आप में से कुछ लोग जो है भिन्न भिन्न भाषाओं में बात कर सकते हो। I don't see everybody speaking in unknown मैं tongues. सभी लोग को जो है अन्य भाषाओं में बातें करते हुए नहीं देखता, But you need to desire to speak in unknown tongues. लेकिन वो इच्छा करना चाहिए कि आपको अलग अलग भाषा में बात करना Because है। when the Holy Spirit comes upon you, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आप पर आती है, this is what the word of God says, ये वचन कहता है, they spoke in unknown tongues. वे भिन्न भिन्न भाषा में बोलने So लगे। you need to desire it. आपको इस बात की इच्छा करनी चाहिए। And the second thing that they did was, और दूसरी बात जो यहाँ पर होती है, they prophesied. वो जो है भविष्यवाणी करने लगे। Just like everybody cannot prophesy, जिस प्रकार सभी लोग जो है भविष्यवाणी नहीं कर सकते, everybody cannot even speak in unknown tongues. सभी लोग जो है भिन्न भिन्न भाषाओं में बात भी नहीं कर सकते, But you can desire for those things. लेकिन आप इस चीजों की जो है इच्छा कर सकते हैं। Don't ever imitate somebody. कभी जो है किसी को जो है पीछा ना करे, किसी के समान ना करते रहो। Somebody is saying unknown tongues, so you don't need to say unknown tongues. कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप उसको देखकर अन्य भाषा Because में the बात करें, unknown tongues must come from the Holy Spirit. क्योंकि वो अन्य भाषा जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आना जरूरी है। When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आप पर आती है, He touches two things. वो दो चीजों को छूते हैं। One, your tongue. पहला जो है आपका जुबान, Your word will start prophesying. आपके जो है बात आप जो कह रहे हो वो भविष्यवाणी के रूप पर आएगी। In Greek, they say glossolalia. ग्रीक में कहते हैं कि उसको ग्रोसलारिया कहते हैं। Even in the psychiatry language, और साइकेट्री के लैंग्वेज में भी, in the psychiatry world, साइकेट्री की दुनिया में भी there are so many books. बहुत सारी जो है पुस्तकें हैं। They make a small little bracket. वो जो है छोटी सी एक ब्रैकेट को बनाते हैं, They say like this. वो इस प्रकार कहते हैं, When you have a psychiatry problem, जब आपको कोई साइकेट्री की कोई बीमारी है, you blabber language. आप जो है अपनी भाषा को जो है जो है ब्लैबर करने लगते हो। You know, when you are mentally ill, you make so many not related words. और जब आप दिमागी तौर में जो है कुछ बीमार हालत में रहते हो, तो आप कुछ ना कुछ बकबक करते रहते हो। All the psychiatry books और सारी साइकेट्री की पुस्तकें have a bracket एक ब्रैकेट होती है, except Pentecostal churches. और पेंटेकोस्टल की जो है कलीसिया के खिलाफ जो है एक ब्रैकेट नहीं रहती। It's amazing, eh? बहुत ही अचंभ चीज है। The doctors of psychiatry वो जो है साइकेट्री के डॉक्टर्स have होते हैं, put that in bracket उन्होंने इस बात को ब्रैकेट में डाला है and said speaking in unknown tongues is not a psychiatric problem. और उन्होंने ये बात को लिखा है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में बात करना ये जो है साइकेट्री की It बीमारी is नहीं है। excluded for the Pentecostal people. वो सिर्फ पेंटेकोस्टल जो है लोगों के लिए वो अलग रखा गया है। They have done researches after researches to put that in the psychiatric book. उन्होंने कहीं रिसर्च की है उस बात को जो है पुस्तक के अंदर डालने के लिए। You must understand, when God takes control, He can change our tongue. इस बात को समझिएगा, जब परमेश्वर आपके जीवन का ताबा लेते हैं वो आपकी चीजों में बदलाव कर सकता है। And I pray that everybody should desire for receiving that Holy Spirit and with the tongue speaking. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब उस चीज की इच्छा करें कि हम सब पवित्र आत्मा को पाए और अन्य How भाषाओं में many बात of करने us लगे। like to prophesy? हम में से कितने लोग भविष्यवाणी करना चाहते Amazing, हैं? eh? I want to prophesy. कितने लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं? You need to desire that. आपको उस बात की इच्छा करनी You चाहिए, need to pray for आपको that. उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। That is not my responsibility to give. It is the Lord Almighty to give you. ये मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं आपको उस बात को दे, लेकिन वो परमेश्वर आपको देना चाहिए। Now the ministry of Paul is starting with teaching. और यहाँ पर जो है पौलुस की जो है सेवकाई शुरुआत होती है यहाँ पर सिखाते हुए, Went into baptism. वो बपतिस्मा की तरफ जाता है। You see that? First was teaching, पहला जो है सिखाना था, then was baptism, उसके बाद बपतिस्मा, then you come to extraordinary miracles. और उसके बाद जो है अचंभ कार्य की तरफ जाता है। See, without salvation, extraordinary miracles will never mean anything. एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार के बिना जो है कोई अचंभ कार्य व्यक्ति नहीं कर The सकता। greatest miracle anybody can receive सबसे बड़ा अचंभ कार्य जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, is your lives being saved. वो जो है एक व्यक्ति का जो है मन बदल जाना, Cancer getting healed is a miracle. जो है अपने बीमारी से जो है मुक्त होना, वो एक अचंभ बात है। All the things that you see in the world are miracles. जो भी आप दुनिया में देखते हो वो सब अचंभ कार्यों में आता है। But the greatest miracle is for a sinner to become a righteous person and get into the books of life. लेकिन सबसे बड़ा अचंभ कार्य एक व्यक्ति के जीवन में वो है जब वो अपने जीवन में उद्धार को पाता है और वो जीवन के पुस्तक में अपने नाम को लिखा हुआ देखता है। How many of you want to do extraordinary miracles? हम में से कितने लोग अचंभ कार्य करना चाहते हैं? Even our shadow should become a
a tool of healing. हमारा छाया जो है वो भी एक चंगाई का एक रास्ता बनना That चाहिए। was what happening when the disciples were walking. Their shadows fell upon the sick and they were getting healed. और वही हो रहा था पुराने समय में जब जो है परमेश्वर के चेले जो है चल के जा रहे थे, उनकी शैडो के कारण जो है लोग My चंगाई को प्राप्त कर रहे goodness, थे। now we are shaking people. Still miracle is not happening. अब जो है हम लोगों को हिलाते रहते हैं, लेकिन वहां पे भी कोई You're अचंभा saying, कार्य let को नहीं देख miracle सकते। happen, miracle happen, miracle happen. Things are not happening. हम लोगों को हिला हिला कर जो है चंगाई को प्राप्त करने की कोशिश को करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। The power of God has not diminished. लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य आज भी कम नहीं हुआ है। But what we are doing should be corrected sometimes. लेकिन जो चीज को हम कर रहे हैं उसको कई बार सुधारने की जरूरत है। We need the power of the Holy Spirit more. हमको जो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अधिक रीति से प्राप्त करना जरूरी Keep है। our knowledge to one side. जो है हमारी सोच, हमारे दिमाग को जो है अलग रखना ठीक है। Keep everything that we have learned till date to one side. जो भी चीज हमने सीखी है उसको अलग सा थोड़े समय के लिए And say रखें to the Lord God, fill me with the greater power of that anointing of the Holy Spirit. और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो है मुझे भर दे। And extraordinary miracles started और happening. अचंभा कार्य के और अचंभा जो है वहां पे चंगाई को हम देख सकते हैं। So when this happened, और ये चीज जब हुई, people started to imitate. लोग जो है उनके समान जो है चीजों को करने लगे। Where there is a reality, there is a imitation. जहां पर एक सच्चाई है, रियलिटी है, वहां पर उस इमिटेशन भी होता है। One day when I was walking in the church, I found some gold pieces. और जब मैं एक दिन कलीसिया में से चल रहा था, मैंने कुछ सोने की चीजों को देखा। I stopped the person vacuuming and said, wait, I see a gold there. और जब मैं कोई वैक्यूम कर रहा था, मैंने उनसे रोका और कहा कि वहां पे गोल्ड दिख रहा है। It's quite a big piece of gold. वो जो है सोने का एक बड़ा टुकड़ा था। Then I showed it to Sony and I said, Sony, some gold is there. और मैंने बीवी से पूछा कि ये देखो मुझे कुछ गोल्ड मिला है। Because I don't know what is gold, what is imitation gold. क्योंकि मेरे को सच्चाई का गोल्ड क्या है, डुप्लीकेट क्या है, मुझे नहीं समझ। She looked at it and said, it is imitation gold. और उन्होंने कहा, उसको देखकर कहा ये तो इमिटेशन गोल्ड है, डुप्लीकेट है। So real looking. ये बहुत ही सही दिखता है, It is glittering. वो चमकता भी है। Interestingly, one day when I was in Hamilton, एक दिन मैं जब हैमिल्टन में था, somebody gave me a beautiful ring. किसी ने मुझे जो है अच्छा सा एक अंगूठा दिया। It was a very big ring. बहुत ही बड़ा अंगूठा था। And for the church. और कलीसिया के लिए। You know what I will do with the ring? और मैंने सोचा कि अंगूठा से मैं क्या करूं। When I went to India some years back, और मैं जब इंडिया गया था कुछ this साल happened पहले, so many years back, okay? ये बहुत साल पहले हुई की बात है। I took this ring to this gold merchant और मैं ये सोने के टुकड़े को जो है वहां पे सोनार के पास ले जाता हूँ। because I had some more ornaments that people had put in the offering bag. I took everything and went to the gold merchant मेरे पास और भी कुछ ऐसे ज्वेलरी थी जो मैं वो उनके पास ले गया था। and he measured it और वो जो है उसको नापने लगे। and he gave me one amount of money और उन्होंने मुझसे एक अमाउंट कहा पैसे का। and I converted it into New Zealand dollars and put it in the church account because I wanted it to be in the church. और मैंने जो है न्यूजीलैंड डॉलर्स में उसको कन्वर्ट किया और मैंने कलीसिया में डाल But the दिया। interesting part was लेकिन मैं मजे की बात ये थी, this big gold ring. ये बड़ा सा जो गोल्ड का अंगूठा, I thought, boy, this is quite going to be very expensive. और मैं सोच रहा था कि ये बहुत ही जो है मूल्यवान हो सकता है। I prayed for a lot for that as well. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory, glory, glory. You और know. मैंने परमेश्वर से बहुत धन्यवाद किया उस अंगूठा के लिए। And the gold merchant took it, he placed it, and he said, "This is the value of it." और वो उन्होंने जो है अपने नापने वाली मशीन में रखकर कहा कि ये उसका मूल्य है। And I was very happy. I looked at Sony and I said, "Wow, you know." और मैं बहुत खुश हो गया। Then he said, "1 minute, I want to rub it." और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इसको रब कर देखना है। There was a stone that he had kept it in his shop, और उसके उनके दुकान में जो है एक पत्थर था जो उन्होंने रखा था, and he rubbed it. Nothing is coming. और उसके खिलाफ जब वो घिस रहे थे कुछ आया नहीं। That fellow, he's a specialist gold merchant. Still, he's rubbing. Nothing is coming. वो जो है एक मशहूर सोनार है, वो ये इस पर घिस रहा है लेकिन कुछ आ नहीं रहा। All of a sudden, the value of the thing changed. और अचानक से जो है उस अंगूठे का जो है मूल्य कम हो गया। He said, "It looks like gold, but it is not gold." उन्होंने कहा कि ये दिखता तो सोने के समान है लेकिन ये सोना नहीं है। I was like, "God, I thanked you for so big thing for some nothing." Then another one brother was there. "Pastor, give me, Pastor. I'll just put it on my finger." और दूसरा भाई जो सामने खड़ा था उन्होंने कहा कि वो छोड़ दो, मुझे दो, मैं हाथ में पहन लेता I हूँ। said, "Take it, brother. Enjoy it." और मैंने कहा कि आप लेकर मजे Now करो। I knew it has no value at all. अब मुझे समझ में आया कि इसके लिए तो कोई मूल्य नहीं है। You know, it looks like gold. Even the gold merchant, for a second, gave me the price, but immediately he thought to scrape it. Otherwise, if at all, my goodness, if he would not have scratched it and I have gone back home, he would have come behind me,
taken to me to the police station because I cheated him. और अगर वो सोनार जो है वहां पर घिसता नहीं था तो मैं घर जाने के बाद वो शायद मुझे पुलिस को When पहुंचा देता। extraordinary miracles were happening during that time, some people wanted to imitate it. और उस समय में जब अचंभा कार्य हो रहे थे कुछ लोग चाहते थे कि उसको इमिटेट करें, Because people want deliverance by hook or crook. क्योंकि लोगों को जो है चंगाई चाहिए हो किसी भी रीति से हो, People wanted healing. लोगों को जो है चंगाई चाहिए। That was the time wrong people took in charge. और वही समय था जब गलत लोगों ने जो है चीजों को हाथ में लिया। They went to the evil people, evil spirit attacked people. वो लोग जो है दुष्ट आत्मा के से जो है बंदित लोगों के पास गए The magic word, abracadabra. और जो है वो अद्भुत बात को वो कह रहे थे। What is the magic word? और वहां पे मैजिक वर्ड क्या था? In the name of Jesus, who Paul says, और यीशु मसीह के नाम से जो पौलुस कहता है get out. तुम बाहर हो जाओ। You know the magic word. और वहां पे जो है वो What is अचंभा that? चीज है। In the name of Jesus, what Paul says, यीशु मसीह के नाम से जो पौलुस कहता है go out. तुम दूर हो जाओ। And the story goes about the sons of a man called Sceva. और वहां पे स्केवा के पुत्रों के बारे में जो है कहानी को हम देख सकते हैं। How many sons he had? उनके पास कितने बेटे थे? He had 7 sons. उनके 7 पुत्र थे। You know, what a good, when you see that number 7, जब आप 7 के अंक को देखते हो we say it is God, हम कहते हैं कि वो बहुत godly अच्छा, number. वो अच्छा नंबर है। Hallelujah. हालेलुया। They look very much like godly people, 7. वो जो है परमेश्वर के लोगों के समान ही दिख रहे थे। 7 Perfect number. 7 जो परफेक्ट नंबर है, But they were doing something bad. लेकिन वो कुछ गलत काम कर रहे थे। Now what they were doing? अब वो कर क्या रहे थे? They were misusing the name of Jesus. वो जो है यीशु मसीह के नाम को व्यर्थ ले They रहे were थे। selling the name of वो Jesus. जो है यीशु मसीह के नाम को बेच रहे थे। They were making a living out of the name of वो Jesus. जो है अपने घराने को चला रहे थे यीशु मसीह One के or नाम के the द्वारा। 2 or 3 miracles would have happened. 2 या 3 अचंभा कार्य उनके जीवन में हुए होंगे, But imitation will not stand forever. लेकिन वो दिखावा जो है अधिक समय तक नहीं चलेगा। On one particular day when the imitation became a bit stronger, एक दिन जब वो दिखाना जो है बहुत कठिन होने लगा, what happened is so powerful here. और वहां पे जो हुआ वो देखना बहुत ही अच्छी बात है। One day the evil spirit answered them. एक दिन जो है दुष्ट आत्मा उनसे कहने लगी, You know, evil spirit answered them. वहां पे दुष्ट आत्मा उनसे कहती है, From the town I come from, और मैं जो जगह से आता हूँ there was a big crusade. वहां पे एक बड़ा सा एक क्रूसेड मीटिंग हुआ था, And sick people were getting healed. वहां पे जो है बीमार लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे थे, And immediately an evil spirit started the manifestation. और अचानक से वहां पे जो है एक दुष्ट आत्मा का जो है काम होने लगा। It made all sorts of tongues and nose and all sorts of shapes. उन्होंने सारी प्रकार की जो है चीजों को वहां पर किया, It came on the stage. और वो स्टेज में आने लगे, And the preacher who was preaching और वहां पे जो प्रचार कर रहे थे said, in the name of Jesus, get out. उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम पे तुम दूर हो जाओ। Now this is what happened there also. और यहाँ पे जो हुआ वो वहां पर भी हुआ। That devil possessed person वहां पे दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति looked at this preacher ये प्रचारक पर देखने लगा and said like this, और इस प्रकार कहने लगा, do you know where you were yesterday evening? और उनसे पूछने लगा कि तुम्हें पता है तुम कहाँ पर थे कल? Immediately, the preacher came to know, man, this fellow knows something better than nobody here. अचानक से वो प्रचारक सोचने लगा कि ये व्यक्ति मेरे बारे में कुछ ज्यादा जानता है। And now the preacher looked at the eyes and said, you are a liar because you are the father of lies. Don't tell lies. अब वो प्रचारक जो है इसके आंखों में देखकर कहता है कि तुम एक झूठे व्यक्ति हो क्योंकि तुम्हारा जो है पिता झूठा है। That lady looked at him and said, laughing, 8 p.m. Do you want me to say the place that you were? वो स्त्री जो है प्रचारक को देखकर कहने Oh my लगी कि कल रात को goodness. 8 बजे क्या हुआ मैं बोल दूं? The evil spirit is prophesying to a pastor. अब जो है वहां पे एक दुष्ट आत्मा जो है प्रचारक पर जो है भविष्यवाणी करती है, Exactly this is what happened. और वही चीज यहाँ पर होती है। You know the shape of the pastor then, eh? आप जो है प्रचारक के जो है हालत को समझ सकते हो। The police had to come and take that lady out, saying to पुलिस को save the pastor for that moment. उस पासवान को बचाने के लिए जो है पुलिस को आकर उन्हें They इंटरव्यू can't करना, arrest the pastor, so they arrested that poor lady. वो जो है प्रचारक को अरेस्ट नहीं कर सकते थे इसलिए वो स्त्री को अरेस्ट कर ले गए। Some are not arrested, some are sitting right here in the church because God is so merciful. कुछ लोग आज भी गिरफ्तार में नहीं आते क्योंकि परमेश्वर दयालु है। Even if God doesn't prophesy, an evil spirit can start prophesying. अगर परमेश्वर वहां पे भविष्यवाणी नहीं करे तो भी वहां पे दुष्ट आत्मा जो है भविष्यवाणी कर सकती है, Because God is seeing and the devil is seeing. क्योंकि वहां पर परमेश्वर भी आपको देखता है और दुष्ट आत्मा भी आपको देखती This है। is called the spiritual world. इसी को जो है हम आत्मिक दुनिया कहते हैं।
Even sometimes if when God doesn't see, the devil will see. कई बार जब परमेश्वर आपको भी नहीं देखते, वो दुष्ट आत्मा आपको देखती है। Now the blame is coming here. One day the evil spirit answered, then Jesus I know. और वहां पर दुष्ट आत्मा इस प्रकार कहती है कि यीशु को मैं जानती हूँ। What is the devil saying? वहां पे दुष्ट आत्मा क्या कहती है? I know Jesus. मैं यीशु को जानती हूँ। What a beautiful testimony. ये कितना अच्छा गवाह है। Paul I know. पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ। But who are you? परंतु तुम कौन हो? See the question, who are? यहाँ पे प्रश्न देखिएगा कि तुम कौन हो, वहां पे दुष्ट आत्मा पूछती है। The devil knows the reality and the devil knows the duplicate. और शैतान जो है सच्चाई चीज को भी जानता है और वो डुप्लीकेट चीज को भी जानता है। Christ is going to come back very soon. मसीह जल्दी ही लौटने वाले हैं। So many duplicates are going to come out. बहुत सारी डुप्लीकेट चीजें जो है दुनिया में और आने वाली है। And because duplicates are running around in the form of godly people. क्योंकि ये डुप्लीकेट जो है परमेश्वर के रूप में जो है यहाँ वहाँ भागती है। Let us get out of that nature and say, God, we want to be the real children of you, Lord. और इसीलिए हम इस चीजों से दूर भागकर हम परमेश्वर से कहें कि हमें जो है सच्चे परमेश्वर के संतान बनने हैं। Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. और उस मनुष्य से जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उनमें वश में लेकर उन पर ऐसा उपद्रव किया। All the 7 people were attacked. और सारे जो है 7 लोग पे जो है One हमला हुआ। person attacked 7 people. एक व्यक्ति वहां पे 7 लोगों पर हमला करता है। No karate, no kung fu. वहां पे कोई कराटे या कुंग फू नहीं। One evil spirit attacked everybody. एक दुष्ट आत्मा वहां पे सारे 7 लोगों को जो है हमला करता है। And these fellows, what happened to them? और उसके बाद वो क्या होता है? He gave them such a beating. उन पर ऐसा उपद्रव किया। What a bad story there. That fellow gave such a beating for all the 7 fellows यहाँ पे ऐसा उपद्रव हम देखते हैं कि ये 7 लोगों पर किया that they started bleeding. कि वे जो है घायल होकर Even their clothes were pulled out और and they उनके- ran naked. कपड़े भी उतारे गए और वो जो है वहां से नंगे भाग रहे थे। You know, sometimes acting will stay only for some time. कई बार जो है एक्टिंग जो है कुछ समय तक ही रहती है। I always say to the Lord God, not even a single day I want to be a hypocrite in any way. मैं हमेशा परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ कि मैं कभी भी जो है एक हिपोक्राइट नहीं बनूं। Even if I don't have a lot of people following me, it doesn't matter. अगर मेरे कलीसिया में बहुत सारे लोग ना हो तो भी Not even a single day I want to do something which is not from your word, Lord. एक दिन भी मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा गया है। Because I know the effect of being a duplicate. क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक डुप्लीकेट होने का नतीजा क्या होता है। We will become naked. हम जो है नंगे हो जाएंगे। For some time, we will be okay, but for a long run, the nakedness will be remembered. कुछ समय तक जो है हम ठीक रहेंगे लेकिन बाद में जो है इस नंगेपन को जो है याद किया जाएगा। How many of you remember the coat I wore last week? हम में से कितने लोग जानते हैं कि मैं जो कोट लास्ट वीक पहना था? Because I wear coats every Sunday, you may not remember it. क्योंकि मैं हर संडे कोट पहनता हूँ इसलिए आप शायद याद नहीं करेंगे। I wore the same. Okay, I wore the same coat. मैंने सेम ही पहना था You don't remember it. क्योंकि आप उसको याद नहीं रखते। But somebody makes me naked. लेकिन अगर कोई मुझे विवस्त्र करता है You will remember it your lifetime. आप जो है पूरे जिंदगी में जो है मुझे याद करोगे। You know, you understand what I'm talking about? आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? When the Lord exposes you, जब परमेश्वर आपको जो है नंगा करता है that will be a very bad exposure. वो बहुत ही बुरी तरह का जो है एक्सपोजर होगा। When the devil exposes you, जब शैतान आपको एक्सपोज करता है it will be a very bad exposure. वो बहुत ही बुरी तरीके का एक्सपोजर होगा। What you do in the secret जो आप रहस्य में करते हो will be called upon the rooftop. वो जो है रूफ टॉप के ऊपर बुलाया जाएगा। How much afraid we need to lead a Christian life. हमें अपने मसीह जिंदगी को कितने भय के साथ जीना We चाहिए। can't use the name of Jesus in a vain manner. हम जो है इस परमेश्वर के वचन को जो है जस्ट वेन रीति We में नहीं can't बुला use the सकते। Bible for our livelihood. हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ हमारे जीने के लिए उपयोग नहीं करें। We can't use this Bible for preaching. हम जो सिर्फ ये वचन को सिर्फ प्रचार करने के लिए ना उपयोग This करें। is for living. ये जो है हमारे जीवन के लिए This है। should be our testimony. ये हमारी गवाही होनी चाहिए। How much ever you know the Bible, become a student again and again. चाहे आप कितना भी इस परमेश्वर के वचन को जानते हो, आप हमेशा एक शिशु के समान Not बनो। even a single day you say, I have learned everything of the Bible. एक दिन भी ऐसा ना हो कि जहाँ पर आप कहे कि मैंने ये वचन को पूरी तरह से पढ़ लिया है। Because God is waiting to take the perfect people. क्योंकि परमेश्वर जो है परफेक्ट लोगों को उठाने के लिए तैयार When है। you become perfect, जब आप परफेक्ट हो जाते हो, you are taken back home. आप अपने घर पर ले जाते हो। Because
perfect people doesn't have a place in the imperfect world. जब बहुत ही परफेक्ट लोगों को इस दुनिया में जो है जगह नहीं है, That simply says, I am also imperfect. वो सिर्फ इतना बताती है कि मैं आज भी इम्परफेक्ट हूँ. If I am on this world, on this earth, I am not a perfect person. I am thriving to become a perfect person. अगर आज भी मैं दुनिया में उपस्थित हूँ, इसका मतलब ये है कि आज भी मेरे में कमियां हैं और मैं परफेक्ट नहीं हूँ. Let our prayer life increase. हमारी प्रार्थना की जिंदगी बढ़े, Let our knowledge of the word of God increase. परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे जीवन में बढ़ते रहे, Because my God is in the work of performing extraordinary miracles. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है अचंभा कार्य करने में जो है करने के लिए तैयार है. Let the miracles happen through you and your words. सारे अचंभा कार्य जो है आपके द्वारा और आपके बातों Let के the द्वारा होने miracles पाए. happen through your walk. सारे अचंभा कार्य जो है आपके चाल चलन से होने पाए. When you pray, let the miracles start जब happening. आप प्रार्थना करें, हो सकते है वहां पे चंगाई Let हो, the evil spirit just vanish. वहां दुष्ट आत्मा जो है लोगों से छूट कर जाए, Let the name of Jesus be glorified. वहां पर यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाने Can पाए. we all raise to our feet क्या हम सब खड़े हो जाएंगे and say to the Lord God, और परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर, some secret things only you and the devil knows. कुछ रहस्य चीजें जो सिर्फ आप और दुष्ट आत्मा जानती है. Before the devil expose me, दुष्ट आत्मा मुझे जो है एक्सपोज करने से पहले I want to say sorry to you, Lord. मैं आपसे जो है माफी मांगना चाहता हूँ, Because Jesus doesn't like to expose his children. क्योंकि यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को जो है एक्सपोज करे. Jesus will start protecting his children. यीशु मसीह हमेशा अपने बच्चों को जो है सुरक्षित रखना But the चाहते हैं, devil is always on the run to expose the children of Jesus. लेकिन शैतान जो है हमेशा जो है यीशु मसीह के संतान को जो है एक्सपोज करने के लिए तुला हुआ When है. the child of Jesus do any mistake, the devil immediately pounces. जब परमेश्वर का संतान किसी भी प्रकार की गलती को करता है, वहां पे शैतान जो है खुद पड़ता है उस पर. He wanted to say to Jesus, Jesus, this is your child. He is doing it. See how he is. शैतान हमेशा परमेश्वर से कहना चाहता है कि ये आपका बेटा है, देखो ये क्या कर रहा है. How many times Jesus has protected you? कितने बार परमेश्वर ने जो है आपको सुरक्षित रखा है. He has said to the devil, go away. My child is a righteous person. उन्होंने जो है कितने बार शैतान से कहा कि तुम दूर हो जाओ, ये मेरा बच्चा है. But we cannot take that grace very lightly. लेकिन हम परमेश्वर की कृपा को जो है बहुत ही मामूली सा नहीं ले सकते. That covering is called grace covering. और वो जो कवरिंग को ही हम कृपा कहते हैं. We cannot take it light हम जो है उसको साधारण रीति में नहीं ले सकते, because the devil wants to expose us. क्योंकि शैतान हमेशा जो है हमें एक्सपोज करने में तुला हुआ है. Right now, we can humble ourselves and say to the Lord God, forgive my mistakes, आज Lord. सवेरे जो है हम परमेश्वर के सामने नम्र होकर कह सकते हैं कि आप मेरी जो है गलती को माफी कीजिएगा. Nobody may be knowing, but God knows. हो सकता है कोई और नहीं जानता हो, लेकिन परमेश्वर आप जानते हो. And today I'm letting you know, another person also knows the devil. और आज ये बात भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक और व्यक्ति जानता है, वो है शैतान. And say to the Lord God, I say sorry for the mistakes I have done. और परमेश्वर से कहिएगा कि मैं आपके सामने इस गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ. I do not want to run naked because the devil attacked me. मैं नहीं चाहता जब शैतान मुझे एक्सपोज करने के लिए तुले हो, मैं नंगा वहां पर दौड़ूं. I don't want to run shameful from here, Lord. मैं वहां पर जो है शर्मिंदा होकर वहां से दौड़ना नहीं चाहता. Father, I want you to forgive me. पिता, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा कीजिएगा. I want you to get back to the first verse that I read at the start of the month. Draw closer to God and the Lord will draw closer to और मैं वो you. चीज वापस दोहराना चाहता हूँ जो इस महीने की शुरुआत में मैंने कहा था कि तुम परमेश्वर के करीब हो और परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा. This is a process that you run towards God. और ये एक जो है नतीजा है जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं. Run away from the evil and the devil will flee from you. गलत चीजों से दूर भागेगा और शैतान आपसे दूर भागेगा. As the last Sunday of the month, I want everybody to make this decision when you pray. इस महीने के अंतिम रविवार होने के नाते मैं आपसे इस बात को प्रार्थना करने के लिए मैं आपको कहता हूँ, Am I in the saved list of people? और क्या आप जो है उस गिनती में पढ़ते हो? Am I the disciple of Jesus? क्या मैं परमेश्वर का चेला हूँ? Am I doing the right things according to what the Bible says? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं सही कामों को कर रहा हूँ? If I have not done it, I want to do it. अगर मैंने उस चीजों को नहीं किया है तो मैं करना चाहता हूँ. I want to pray and say, Lord, next month, the month that we are getting, we will have a baptism. God, Lord, you will start talking to people. मैं प्रार्थना करके ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अगला महीना हो सके कि कोई भी जो है परमेश्वर की बपतिस्मा को लेने के लिए तैयार हो. I have seen people coming to church on मैं a लोगों को जो है long run. मैं लोगों को कलीसिया में आते हुए देखा हूँ, I don't want you to lose heaven. लेकिन मैं आपको नरक में जाना नहीं चाहता. I want you to make the decision. मैं चाहता हूँ कि आप उस निर्णय को ले.
it doesn't harm you in any way. वो आपको किसी भी तरह से की हानि नहीं पहुंचाती। It will only take you from glory to glory. वो सिर्फ आपको महिमा से महिमा ले जाएगा। It will only take you from strength to strength. वो सिर्फ आपको बल से बल की तरफ ले जाएगा। Don't hold on. और जो है उस चीजों पे पकड़े ना रहे। Just leave it and walk with Jesus. वो सब चीजों को छोड़िएगा और यीशु मसीह की तरफ हो चलिएगा। On the day of baptism, और उस बपतिस्मा के दिन I pray that the Holy Spirit will come upon you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेले You will start speaking in unknown tongues. और आप जो है अन्य भाषाओं में बात करने लगे। And you will start prophesying. आप जो है भविष्यवाणी को करते रहे। What a glorious way of baptism would it be? कितना महत्वपूर्ण चीज होगा उस प्रकार का बपतिस्मा। Today you want to dedicate your life. क्या आप अपने जीवन को जो है परमेश्वर के सामने देना चाहते हो? Every eyes closed, and this is your prayer. सभी लोग आंखें बंद करेंगे और ये आपका प्रार्थना है। Father, I give my life to you, Lord. पिता, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। I want to do this right. मैं ये सही तरीके से करना चाहता I हूँ। want to do it right way. मैं सही रास्ते में इसको करना चाहता हूँ। I want to do it the way you told me to do it. मैं उसी रास्ते में जाना चाहता हूँ जो आपने मुझे दिखाया है। I know the Father, I know Jesus, I know the Holy Spirit. मैं पिता को जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ और मैं पवित्र आत्मा को भी जानता हूँ। And I want to do this, Lord. और मैं ये करना चाहता हूँ। The second group of people, you need to start praying for an extraordinary anointing of the Holy और Spirit. दूसरे झुंड के लोग, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे। Don't just rely on the ordinary things that you are happy with. जो साधारण चीज आपके जीवन में उससे खुश न रहे। You need to start praying for extraordinary things to happen through you. आपके जीवन के द्वारा जो है असाधारण चीजों के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। Simple as it is, God was telling, even a kerchief will बहुत- receive the power. बहुत ही साधारण सी एक चीज है जो आपके पसीना पोछने वाला रूमाल है, उससे भी अचंबकारी हो सकते हैं। You don't need to be there. आपको वहां पर होने की जरूरत नहीं है। Just your kerchief will have that power anointing. आपके रुमाल में भी वो अभिषेक और वो सामर्थ्य हो सकता है। And I pray in our church, we will start performing extraordinary miracles. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कलीसिया में भी जो है ऐसे अचंबकारी होने शुरू हो। Auckland requires that. और ये ऑकलैंड को इसकी जरूरत है। Our people around require हमारे that. आसपास के लोग को इसकी जरूरत है। Especially the land that we live, even though we live in a safe zone, there are tons of people in different types of sickness. हम जो है इस देश में बहुत ही सुरक्षित हमें महसूस होता है, लेकिन हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग हैं जो बीमार हालत में हैं। Bethel Church should be a church of healing. हमारा कलीसिया जो है एक चंगाई का कलीसिया Come on, होना है। everybody praying, Lord, I want to be that instrument of healing. हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि हमें वो इंस्ट्रूमेंट बनना है, वो चंगाई का इंस्ट्रूमेंट। The evil spirit should go through when you place your hands upon them. जब आप अपने हाथों को उनके ऊपर रखते हो, दुष्ट आत्मा को वहां से दौड़ना चाहिए। Even without your presence, the things that you use must be able to cast away the power of the devil. आपके वहां पे न होने के बावजूद भी आप जो चीजों के उपयोग करते हैं, वो वहां पर हो कि वहां पे I अचंबकारी want होने पाए। everybody to start receiving it in Jesus' मैं चाहता name. हूँ कि हम सब चीजों को पाए And you need to say, God, I want to receive it. और परमेश्वर से कहे कि मैं परमेश्वर इस चीज को पाना चाहता हूँ। If I'm imitating somebody, I want to stop it. अगर मैं किसके बारे में किसी की तरह दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उसको रोकना चाहता हूँ। If I'm imitating some preacher, Pastor Binu, I want to stop it. अगर मैं कोई प्रचारक को इमिटेट कर रहा हूँ, तो मैं उसको रोकना चाहता हूँ। I don't want imitation, but I want your spirit, Lord. मैं जो है किसी को इमिटेट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे आपकी आत्मा की I अभिषेक want to चाहिए। do it through your mighty name, Lord. मेरे को आपकी इच्छा के अनुसार ही चीजों को करना है। Holy Spirit will rely and live only in holy place. So Lord, make my life a holy life. पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में काम करें और मैं एक पवित्र जीवन को जीना शुरू करूँ। If you want to do the work of the Lord, please raise your hand wherever you are. अगर आप परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, तो अपने हाथों को उठाइए। God is looking down to see whom shall He send the Spirit upon. और जब भी वो परमेश्वर देख रहे हैं कि मैं किस पे Hallelujah. अपने आत्मा को उंडेलूं, And when the Spirit of the Lord comes upon you, और जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आती है, you will start performing extraordinary miracles. आप जो है असाधारण चीजों को करने लगेंगे। Your families will not be the same. आपके परिवार जो है उस प्रकार नहीं होगी The जैसे people पहले who थी। touch you will not be the same. जो लोग को आपने छुआ है, वो आपके उसके The समान place नहीं that you go will not be the same. रहेगी। जो जगह पे आप जाते हो, वो साधारण नहीं The रहेगी। workplace will not be the same. जो काम करने वाले का जगह जो है, वो भी The साधारण dark नहीं रहेगा। places will turn out to be glowing places. और वहां पे जो है परमेश्वर के तेज उतरने वाले जगह बन जाएंगे। Hallelujah. 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 Come on, everybody pray.